Namaskar children, this is Poonam Bagga welcoming you once again in your maths class. We are studying class 10th maths, chapter 7 coordinate geometry. We now know what is the distance formula and how it can be used to find the distance between any two given points. Also we know that the distance formula can be used to check the collinearity of three given points. Also if any 3 points are given to us, then we can check whether a triangle will be formed by the given points or not, and if a triangle will be formed, then which type of triangle will it be? This can also be known. Also if we are given any 4 points, then we can check which type of quadrilateral will be formed by the given 4 points. We had done some examples based on all these in our previous video, and in today's video we will start exercise 7.1 and take up question number 1 to 5 in this video. I hope by this time you all must have tried these questions once on your own, and today you are going to verify your answers from here as we start with the first question from exercise 7.1. Here it is. Find the distance between the following pairs of points. Here the first pair of points has been given. यहाँ 2 points दिए हुए हैं, उनके coordinates दिए हुए हैं. पहले point के coordinates हैं 2,3 और दूसरे point के coordinates हैं 4,1. And now we have to find the distance between these 2 points using the distance formula. Let us begin with the solution. First of all, we will write what is the distance formula. The distance between 2 points P whose coordinates we are taking as x1, y1 and Q. Let the coordinates be x2, y2. This distance is given by PQ equal to under root. First we will find the difference between the x coordinates. दोनों points के x coordinates को minus करेंगे. आप चाहें तो x1 minus x2 ले सकते हैं, आप चाहें तो x2 minus x1 ले सकते हैं, दोनों ही सही रहेंगे. So this will give you x2 minus x1 and then square it plus. Now we will find the difference between the y coordinates of both the points. आप चाहें तो y2 minus y1 ले लीजिए, आप y1 minus y2 भी ले सकते हैं. Then square it. This is the distance formula. Now using this formula we will find the required distance in this question. It will be given by square root, and now first of all we will find the difference between the x coordinates. ये है x coordinate और ये है x coordinate. 4 minus 2 ले लेते हैं हम. 4 minus 2 whole square. और हम यहाँ अब फाइंड करेंगे y coordinates के बीच में difference. This and this. तो ये हो जाएगा 1 minus 3 whole square. Okay. Next what? 4 minus 2. It's 2 and square it plus 1 minus 3. It's minus 2 and square it. This will give you 2 square is 4 and minus 2 whole square is also equal to 4. जब भी हम negative integer का square करेंगे तब भी आंसर हमें positive ही मिलेगा. आप देख लीजिए. minus 2 whole square. This will be minus 2 into minus 2. Minus minus हो जाएगा आपका plus और 2 2s are 4. So we will be having plus 4 or simply 4. This will be equal to square root of 8 and this can further be solved as 2 into 2 into 2. 8 को हमने split up कर दिया है 2 into 2 into 2. यहाँ पर इस 2 का एक पेयर बन रहा है, तो पेयर में से एक 2 तो बाहर ले लेंगे और जिसका पेयर नहीं है वो स्क्वायर रूट में ही रहेगा. सो द डिस्टेंस इज 2 root 2 units. This is the required distance between these two given points. I hope it is clear. Next we find the distance between these 2 points. Again the required distance. It will be given by अंडर रूट. पहले हम फाइंड आउट करेंगे x कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिफरेंस. देखिए आप पहले ये ले लीजिए -1, फिर माइनस और फिर हम लेंगे ये -5. ठीक है. होल स्क्वायर प्लस. नाउ वी विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द y कोऑर्डिनेट्स. पहले लेंगे 3, फिर माइनस और अब ये लेंगे 7. 3 minus 7 होल स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट -1 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर.
or 3 minus 7, it is minus 4 whole square. This will further be equal to minus 1 plus 5, it's 4 and so 4 square, और यहाँ है minus 4 whole square. This will be equal to 4 square is 16 plus what will be minus 4 whole square. Again, because there is a minus sign, it will not change the sign of the square, it will be positive always, ये ध्यान रखिएगा. So ये हो जाएगा again 16. This will be under root 32, and now if you want to find its factors, it will come out equal to 2 into 2 and 5 times. We will be having 2. आप देखिए ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, तो दोनों ही पेयर्स में से एक एक 2 हम बाहर ले लेंगे. 2 एक यहाँ से बाहर आ गया, एक इस पेयर से बाहर आ गया, और जिसका पेयर नहीं बन रहा है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 4 रूट 2 units. This is the distance between these two given points. Okay, next we have one more pair, AB and minus A minus B. Again we will find the required distance. बताइए क्या करेंगे. पहले हम स्क्वायर रूट में लेंगे और क्या लेंगे, डिफरेंस बिटवीन द एक्स कोऑर्डिनेट्स. ए है और यहाँ से है माइनस ए, तो पहले अगर हम ए लें तो ये माइनस माइनस ए, ठीक है, और अब इसका स्क्वायर प्लस यहाँ से आएगा आपका बी माइनस माइनस बी और फिर होल स्क्वायर. ठीक है, पहले हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया एक्स कोऑर्डिनेट्स के बीच में और फिर डिफरेंस फाइंड आउट किया y कोऑर्डिनेट्स के बीच में. दिस विल गिव यू दिस एक्सप्रेशन. फ्रॉम हियर वी गेट a और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस a होल स्क्वायर प्लस यहाँ आपको मिलेगा b माइनस माइनस प्लस b होल स्क्वायर. दिस विल बी अंडर रूट 2a होल स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर. This will be equal to square root 2 square, it will be 4 and a square will be a square itself. 2 square will be 4 और फिर b square. ठीक है, clear? Now you can take 4 as the common factor out और यहाँ बचेगा a square plus b square. ठीक है, 4 कॉमन है दोनों में तो उसको बाहर कॉमन ले लिया और अंदर हमें यहाँ से मिलेगा a square और यहाँ से b square. Now square root of 4 is 2, we know this. So this will be equal to 2 square root a square plus b square. So this is the distance between the given 2 points, this much units. Okay, next we take question number 2. Find the distance between the points 0, 0 and 36, 15. Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2 in your book? We will read this question out afterwards. First we find the distance between the points 0, 0 and 36, 15. अब आप देखिए यहाँ पर एक पॉइंट तो ओरिजिन ही है और हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन. उसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए ये डिस्टेंस हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट अस राइट द सॉल्यूशन. The distance of a point P given by coordinates x, y from the origin whose coordinates are 0, 0 is given by OP. इसको ओरिजिन को हम अगर O से डिनोट करें O, दिस विल बी गिवन बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, और अब क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट ओरिजिन ही है तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगा इन दिस क्वेश्चन, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट. नाउ इन प्लेस ऑफ x वी हैव 36, सो 36 होल स्क्वायर plus then we will have y square, that means 15 square. Now 36 square you can find it easily. 36 into 36, 36 into 6 will be 216 and now multiply by 3, 3 6 are 18 and 1, here we will have 108, 6 9 2 and 1.
it's 1296 plus 15 square is 225. This you must be knowing. Now on adding these two numbers 6 and 5, it's 11, 1 carried 12, 1 carried 5 and 1, 1521. इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. कैसे करेंगे? बाय यूजिंग द डिविजन मेथड वी कैन इजीली फाइंड दिस स्क्वायर रूट. लेट अस राइट द नंबर 1521. पीछे से पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर. दो पेयर बन रहे हैं तो इसके स्क्वायर रूट में दो डिजिट्स होंगी. पहला पेयर यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो है 15. 15 से छोटा स्क्वायर नंबर ऑब्वियसली इट इज 3 3s are 9. And now subtract 15 minus 9, it's 6. Now copy down this full pair 21 here, and here we will have the double of this number. 3 का double, 3 2s are 6. अब 6 के आगे एक डिजिट लेना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि हमें मिल जाए 621. अब क्योंकि पीछे 1 है तो 1 किस नंबर के स्क्वायर में आता है एंड में? यू विल सी 1 स्क्वायर एंड्स एट 1 और 9 स्क्वायर ऑल्सो एंड्स एट 1. 9 स्क्वायर के एंड में भी 1 आता है और 1 स्क्वायर के एंड में भी 1 आता है. तो अगर हम 1 लेंगे तो 61 इंटू 1 इट विल बी 61, अ स्मॉलर नंबर. लेट अस ट्राई द नंबर 9. 9 9s are 81, 8 carried, 9 6s are 54 and 8, yes, it's 62. So it will go 9 times. 69 into 9, it is 621. This will give you 0 as the remainder and the square root is 39. ठीक है? So this is equal to 39 units. ये हमने find out कर लिया distance between 0 0 and 36 15. Now let us move towards the question in section 7.2 in your book. It says a town B is located 36 kilometers east and 15 kilometers north of the town A. How would you find the distance from town A to town B without actually measuring it? तो यहाँ पर दो टाउन की बात हो रही है. Let us draw first two axes. Let these be two axes. ठीक है? Now we know that this is the direction of north. This is south. This is your east direction and here we have the direction west. It is saying that the town B is located 36 kilometers east. ठीक है? तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम. यहाँ पर हम मान लेते हैं कि टाउन A है और यहाँ से 36 किलोमीटर्स ईस्ट चलने पर और फिर 15 किलोमीटर्स नॉर्थ है अपवर्ड्स, तो 15 किलोमीटर्स नॉर्थ चलने पर हमें मिल रहा है टाउन B यहाँ पर. तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. ये देखिए, ये तो हो गया आपका x कोऑर्डिनेट, ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट. तो B टाउन के कोऑर्डिनेट्स हो गए 36, 15 एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, द टाउन्स A एंड टाउन B. ओके, इनके बीच में ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो अब आप देख सकते हैं कि A के कोऑर्डिनेट्स हो रहे हैं 0 0 और B टाउन के कोऑर्डिनेट्स हो रहे हैं 36 15. तो अभी हमने इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट किया है. देखिए यहाँ पर निकल कर आ रहा है 39 यूनिट्स. तो अब हम इजीली विदाउट एक्चुअली मेजरिंग द डिस्टेंस, हम यहाँ पर कोई स्केल या मीटर लेकर नापने नहीं जा रहे हैं दोनों ही टाउन्स के बीच का डिस्टेंस. हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हुए इजीली दोनों टाउन्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर पा रहे हैं और कर सकते हैं. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? हाउ वुड यू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम टाउन A टू टाउन B विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट? तो आप यहाँ पर आंसर लिख दीजिए. वी कैन मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टाउन A and town B by using distance formula, where the coordinates of town A are 0, 0 and
town B are 36, 15. Let me make some space. We can write required distance. This is equal to under root 36 square plus 15 square, and this we have found equal to 39 units. And what will be the unit this time? It will be kilometers. देखिए क्वेश्चन में किलोमीटर्स है तो ये भी हो जाएगा आपका किलोमीटर्स. So the required distance is 39 kilometers between town A and town B. Okay. Next, now we can take question number 3. Determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear. Collinear points are those points that lie in a straight line. 3 points लेते हैं हम, A, B और C. अगर ये तीनों points एक straight line में lie करेंगे तब हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स. और पता कैसे करेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन में है या नहीं? इसके लिए हमें तीनों के ही कोऑर्डिनेट्स पता है. ए के कोऑर्डिनेट्स पता है 1, 5 है, बी के हैं 2, 3 और सी के हैं -2, -11. पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला से ए और बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से बी और सी के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, और फिर यही फॉर्मूला यूज़ करते हुए ए और सी के बीच में भी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. अगर ये तीनों एक ही लाइन में होंगे तब तो जो ये डिस्टेंस निकलेगा ए बी और जो ये डिस्टेंस निकलेगा बी सी, इन दोनों का सम इक्वल होगा इस पूरे डिस्टेंस के जो होगा ए सी की. अगर दो डिस्टेंसेस जो भी छोटे होंगे, मुझे नहीं पता कि इनमें छोटा कौन सा रहेगा और बड़ा कौन सा, अभी हमने सॉल्व तो किया नहीं है, लेकिन जो भी दो डिस्टेंस होंगे उनका सम अगर इक्वल आ रहा होगा थर्ड डिस्टेंस के, तब हम कहेंगे कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं. और अगर तीनों पॉइंट्स मान लीजिए इस तरह के हों, एक पॉइंट ऊपर हो, तो अब आप देखिए क्या ये कोलिनियर है? एक स्ट्रेट लाइन में तो लाई नहीं कर रहे हैं. तो ऐसे केस में जब हम ए बी और सी ले रहे हैं, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, और ऐसे केस में आपका ए बी प्लस बी सी इक्वल नहीं होगा ए सी के, या कह लीजिए बड़ा भी हो सकता है ए सी से, बड़ा होगा या इक्वल नहीं होगा ए सी के, तब हम कहेंगे कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हैं. तो यहाँ हम डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे और फिर ए सी निकालेंगे, और देखेंगे कि क्या दो डिस्टेंसेस का सम आ रहा है इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस. ऐसा होगा तब तो कोलिनियर होंगे, और अगर इक्वल नहीं होगा तो नॉन कोलिनियर होंगे. ठीक है. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. वी हैड डिस्कस्ड इट इन आवर प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो. Now let us write the fair solution. We begin the solution here. Let the points be A 1, 5, then B 2, 3 and C -2, -11. ठीक है. Then by using distance formula, we get AB. AB निकालते हैं. बताइए, पहले हम x कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. x कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो आप चाहें तो 1 - 2 ले लीजिए, चाहें तो आप 2 - 1 ले लीजिए, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले सकते हैं. आई एम टेकिंग इट एज 2 - 1 होल स्क्वायर. नाउ सब्ट्रैक्ट द y कोऑर्डिनेट्स. यहाँ से 3 और यहाँ से 5. हमने 2 पहले लिया है, अब यहाँ से 3 पहले लेंगे, माइनस, और अब ये हो गया 5 होल स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 - 1 it is 1, so 1 square. 3 - 5 it is -2 whole square. This will be equal to under root 1 square will be 1 plus -2 whole square will be 4. So this is equal to √5 units. ये मिल गया हमें फर्स्ट डिस्टेंस पॉइंट A और B के बीच में. Now we will find BC. Again first we will find the difference between the x coordinates. ये है -2 और ये है 2, तो आप लिख सकते हैं -2 - 2 होल स्क्वायर.
ये -2, फिर माइनस आएगा फॉर्मूले का और फिर ये 2, ठीक है, प्लस नाउ -11, हम y कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर रहे हैं, पहले आएगा -11 और फिर -3 होल स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल टू -2 it is -4 whole square plus -11 -3 it is -14 whole square. This will be equal to under root -4 whole square is 16 and -14 whole square it will be 196. Add the two numbers, 6 and 6 12, here we will have 1 and then 212. Can we simplify it? Let us find the prime factors of 212. 2 ones are 2, 0, 6, again 2, 5 and 3, 53. तो यहाँ हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 53. 2 का पेयर बन रहा है, इसे बाहर ले सकते हैं. दिस विल बी 2 रूट 53 यूनिट्स. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस AC. We write it here, AC. Again first we will find the difference between the x coordinates. Let me also make it clear. ठीक है, this is A point and this is C point, this is A, ठीक है. Now first we will subtract the x coordinates. -2 है पहला, ठीक है, फिर माइनस करेंगे किसको, 1 को यहाँ से, -2 -1 होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स को माइनस कीजिए, ये मिल रहा है -11, देन माइनस दिस नंबर 5 होल स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट -2 -1 it is -3 होल स्क्वायर प्लस -11 and -5 it is -16 होल स्क्वायर. This will be equal to under root -3 whole square is 9 and -16 whole square is 256. On adding, what will you get? Find the total as I make some space. This will be equal to under root 9 and 6, 15, 1 and 265. So it's under root 265 units. Let us check whether we are getting any prime factor in pair. We will divide by 5. 5 5s are 25 and then 3s are 15. 53 भी प्राइम नंबर है और 5 भी कोई भी पेयर फॉर्म में नहीं है, तो इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं. Now just have a look. We have to check the collinearity. तो देखिए क्या दो डिस्टेंसेस का सम इक्वल आ रहा है थर्ड डिस्टेंस के. तो आप देखेंगे ये है √5, ये है 2 √53 और ये है √265. तो इनमें कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं दिखाई दे रहा है, किन्हीं दो डिस्टेंसेस का सम इक्वल नहीं है थर्ड डिस्टेंस के. तो ऐसे केस में तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है. वी नाउ राइट हियर द सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस is not equal to the third distance. Therefore, the given points are non-collinear. एक लाइन में लाए नहीं करेंगे. Okay, I hope the question is clear. Next we take up question number 4. Check whether points 5 - 2, 6 4 and 7 - 2 are the vertices of an isosceles triangle or not. So let us begin the solution. यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हैं हमें. पहला पॉइंट मान लेते हैं A है जो कि है 5 - 2. दूसरा पॉइंट मान लेते हैं B है और ये दिया है 6 4. और तीसरा पॉइंट C मान लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 7 - 2. और हमसे ये पूछा है कि चेक कीजिए कि क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं. तो पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला से AB साइड निकालेंगे,
फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से BC साइड निकालेंगे और फिर उसी फॉर्मूले से AC निकालेंगे। अगर कोई दो साइड्स इक्वल आ गई तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और नहीं आई इक्वल तो नहीं है। तो सिंपल है, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला 3 बार अप्लाई होगा, पहले A और B के बीच में, फिर B और C के बीच में, और फिर C और A के बीच में। नाउ वी कैन इजीली बिगिन विद द सॉल्यूशन। लेट द पॉइंट्स बी A, which is 5 minus 2, then we have B 6 4 and C 7 minus 2. The distance between points P given by x1 y1 coordinates and Q given by x2 comma y2 is given by PQ equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। इस तरह से हमने डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है वो बता दिया है आंसर में, और अब हम यूजिंग दिस फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस AB। ठीक है, पहली साइड ट्राइंगल की जो बन रही है वो है AB, और उसके लिए आप देखिए ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये A है ये B है। पहले हम स्क्वायर रूट लगा दें और फिर x कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे, यहाँ से 6 और यहाँ से 5 माइनस कीजिए, 6 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस, अब हम माइनस करेंगे y कोऑर्डिनेट्स 4 और ये है -2, तो 4 माइनस -2 होल स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 6 माइनस 5 इज 1, सो 1 स्क्वायर, एंड दिस विल बी 4 प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, दो बार माइनस आ रहा है तो प्लस हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर विल बी 1 प्लस दिस विल बी 4 प्लस 2 6 स्क्वायर। This will further be equal to 1 plus 36. 6 square is 36. This is equal to root 37 units. ठीक है, now we find the distance between B and C. We take the next page. BC, B लिख लेते हैं यहाँ पर। B के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 4 और C के कोऑर्डिनेट्स देखिए आप क्या हैं 7 minus 2, और A भी लिख लेते हैं, इट्स 5 minus 2। ठीक है, ये A, B और C हो गए। नाउ वी वांट टू फाइंड BC। फॉर दिस अंडर रूट x कोऑर्डिनेट्स माइनस करते हैं 7 minus 6 होल स्क्वायर प्लस -2 minus 4 होल स्क्वायर। आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट। From here 7 minus 6 is 1, so 1 square, this will be minus 6 whole square. This is equal to under root 1 square will be 1 and minus 6 whole square is 36. This will be again equal to root 37 units. Very good, we are getting two equal sides. देखिए आप, root 37, root 37. Let us now find AC. This is A, this is C. तो पहले x कोऑर्डिनेट्स माइनस किए 7 minus 5 होल स्क्वायर, और अब हम माइनस करेंगे y कोऑर्डिनेट्स -2 -2, तो ये हो जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ +2 होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप यू कैन राइट इट डायरेक्टली नाउ। -2 माइनस ये -2। ठीक है, तो ये यही तो हो गया -2 + 2, उसी को मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया है। नाउ दिस विल बी इक्वल टू square root 7 minus 5 is 2, so 2 square, and this will be -2 plus 2 is 0, so 0 square will be 0 itself. This will be square root 4 and square root of 4 is 2 units. ठीक है, अब तीन साइड्स में से दो साइड्स तो इक्वल आ ही रही हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं since AB is equal to BC, therefore triangle ABC is an isosceles triangle. Thus, the given points are the vertices of an
आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो पहले हमने डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड आउट करते हुए, यूज़ करते हुए, ये हमने ए बी निकाली, जो साइड्स हमने ली थी ए बी सी ट्रायंगल की। ठीक है, पहले हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हुए ए बी साइड निकाली, फिर बी सी साइड निकाली और ए सी साइड निकाली। ए बी और बी सी दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। और क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि आर दीज द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, तो उसी लैंग्वेज में आंसर फाइनल देना है। द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट वी टेक क्वेश्चन नंबर 5. In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C and D as shown. This is the figure. यहाँ पर 4 स्टूडेंट्स हैं। देखिए है पॉइंट A जो कि डिनोट कर रहा है पोजीशन ऑफ स्टूडेंट A. देन दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C, दिस इज पॉइंट D. यहाँ पर ये चारों पॉइंट्स क्या बता रहे हैं? सीटिंग पोजीशन ऑफ 4 फ्रेंड्स. ठीक है, फ्रेंड A, फ्रेंड B, फ्रेंड C, फ्रेंड D. ये चारों पॉइंट्स उन 4 फ्रेंड्स की सिटिंग पोजीशन बता रहे हैं. नेक्स्ट व्हाट हैज़ बीन सेड, Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. बताइए, ये फिगर देखकर चंपा ने कहा कि ABCD एक स्क्वायर बन रहा है. देखिए आप, ABC, here we have D and this one is A. चंपा ने कुछ ऑब्जर्व करके बताया कि ABCD तो एक स्क्वायर बन रहा है, लेकिन चमेली इससे एग्री नहीं कर रही है. शी इज़ डिसअग्रीइंग, और वो कह रही है नहीं ये स्क्वायर नहीं है. तो दोनों में से कौन सही बात कह रहा है ये पूछा है, और अल्टीमेटली हमें ये बताना है कि क्या ये एक स्क्वायर है या नहीं, और स्क्वायर है या नहीं इसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला से कितने डिस्टेंसेस निकालेंगे? वी विल फाइंड 6 डिस्टेंसेस. 4 तो हम साइड्स निकालेंगे. ये हो गई आपकी फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड, थर्ड और फोर्थ. तो पहले तो हम 4 साइड्स निकालेंगे, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, और फिर हम निकालेंगे 2 डायगनल्स, फर्स्ट डायगनल और ये सेकंड डायगनल. अगर चारों साइड्स इक्वल होंगी और दोनों डायगनल्स आपस में इक्वल होंगे तब ये एक स्क्वायर होगा, नहीं तो नहीं होगा. तो फिर हम देखेंगे कि चंपा और चंबेली में से कौन सही बोल रहा है. ठीक है, नाउ लेट अस बिगिन द सॉल्यूशन. फ्रॉम द फिगर, पहले हमें ए बी सी और डी के कोऑर्डिनेट्स बताने होंगे. तो फ्रॉम द फिगर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर, ए के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं क्या बन रहे हैं. यहाँ पर देखिए आप, यहाँ से 3, यहाँ से 4. सो इट इज़ एक्चुअली हैविंग द कोऑर्डिनेट्स 3,4. तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4. फिर हम निकालेंगे बी के कोऑर्डिनेट्स. देखिए आप, बी यहाँ से है 6 और इधर से है 7. सो वी हैव 6,7. कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, लेट अस हैव अ लुक. इधर से 9 और इधर से 4. सो वी राइट हियर 9,4. एंड डी, देखिए डी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से 6 और यहाँ से है 1. सो 6,1. ठीक है, नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, we can find A, B. This will be equal to अंडर रूट. पहले हम x कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे. यहाँ से 6 ले लीजिए, यहाँ से 3, तो 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 7 - 4 whole square. This will be equal to under root 6 - 3 is 3, so 3 square, and 7 - 4 is again 3, so 3 square. This will be equal to under root 9 plus 9. 3 square is 9. This will be equal to root 18. And what is root 18? If you split it, it will be 9 into 2. Square root of 9 is 3, so 3 root 2 units. This is the distance AB, or say the side AB of the quadrilateral. Now we find BC.
बी और सी, पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे, 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 minus 7 whole square. This will be equal to under root 9 minus 6, it is 3, so 3 square, and 4 minus 7, it is minus 3 whole square. This will be equal to 3 square is 9 and minus 3 whole square is again equal to 9. Again it's root 18 and root 18 is nothing but 3 root 2 units. ठीक है, root 18, 9 2 जा 18 होता है and root 9 is 3, so it will be 3 root 2 units. Next we find CD. CD, ये है point C, ये है D. पहले x coordinates माइनस करते हैं, 6 minus 9 whole square plus now difference of y coordinates, 1 minus 4 whole square. This will be equal to 6 minus 9, it is minus 3, then whole square, and 1 minus 4, it's again minus 3 and then whole square. This will be equal to under root minus 3 whole square is 9 and again it is 9, and this is again equal to square root of 18, again equal to 3 root 2 units. Now the fourth side of the quadrilateral, which will be DA. यहाँ पर D है और ये है A. देखिए आप पहले x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस यहाँ से y के कोऑर्डिनेट है 1 और ये है 4, सो 1 माइनस 4 होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू फर्दर 6 minus 3 is 3, so 3 square, and 1 minus 4 is minus 3, so minus 3 whole square. This is again equal to 9 plus 9 equal to root 18, and this is equal to again 3 root 2 units. तो आप क्या देख रहे हैं कि चारों साइड्स इक्वल आ रही हैं, 3 रूट 2 यूनिट्स, चारों ही साइड्स क्वाड्रिलेटरल की. तो ये या तो एक स्क्वायर होगा या फिर एक रोम्बस हो सकता है, क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर के केस में ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल. तो अब ये स्क्वायर है या नहीं, इसके लिए हमें डायगोनल्स भी फाइंड आउट करने होंगे. लेट अस टेक वन मोर पेज. नाउ डायगोनल AC, this is equal to, let me first write the coordinates again क्योंकि उनकी ज़रूरत पड़ेगी. A is your 3 4, B is 6 7, C and D. C is 9 4 and this is 6 1. ठीक है, तो पहले हम डायगोनल AC निकाल रहे हैं, यहाँ से A और यहाँ से C लेंगे. इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस 3, इट्स 6, सो 6 स्क्वायर, एंड दिस इज 0, सो दिस विल बी अंडर रूट 36 एंड दिस विल बी इक्वल टू 6 यूनिट्स. ठीक है, एंड डायगोनल BD बताइए क्या होगा. इट विल बी फ्रॉम हियर B and D here, 6 minus 6 whole square plus 1 minus 7 whole square. This will be equal to under root 6 minus 6 is 0 and 1 minus 7 is minus 6 whole square. This is equal to root 36 equal to 6 units. यहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू. तो ये हो गया 6 यूनिट्स, 6 यूनिट्स, दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली ABCD क्या हो गया यहाँ पर, एक स्क्वायर. सो वी राइट हियर AB is equal to BC equal to CD equal to DA, and diagonals AC and BD both are equal. Therefore, ABCD is a square. ठीक है, आप चाहें तो फिगर से भी देख के बता सकते हैं ये स्क्वायर है. अगर आप नापें तो ये 1 2 और ये 3 इक्वल आ रहा है, 1 2 3 इक्वल आ रहा है, 1 2 3 1 2 3 देखने से भी पता चल रहा है. और डायगोनल्स आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स. ये तो 6 यूनिट्स हमें मिल भी रहा है और ये हमें कैलकुलेट करने पर मिल रही है साइड इक्वल टू 3 रूट 2
यूनिट्स, चारों साइड्स 3√2 यूनिट्स हमें मिल रही हैं, ठीक है, और डायगोनल्स इक्वल हैं, तो ये एक स्क्वायर का केस है। और ऐसे केस में कौन सही बात कह रही थी? चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, एंड चमेली डिसएग्रीज, तो चमेली गलत थी, यहाँ पर कौन सही कह रहा है? चंपा। सो वी राइट हियर, हेंस चंपा is giving the right statement here in this case. Okay, with this we complete the first 5 questions of exercise 7.1. I hope all these questions are very much clear to you, and I hope you enjoyed solving these questions. In our next video we will take up the remaining questions from exercise 7.1. Okay then, goodbye and have a nice day.